It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan. افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان نہیں، قربانی کا بکرا بنانا افسوسناک ہے۔ افغان امن عمل کے معاون ہیں، ضامن نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان قیادت کے الزامات مسترد کر دیے، کہا الزام تراشی کے بجائے پائیدار امن کے لیے آگے بڑھا جائے۔ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، افغانستان میں کسی فوجی قبضے کے حق میں نہیں ہے۔ اسپوائلرز افغانستان میں بھی ہیں اور باہر بھی۔ مسئلے کا حل افغان فریق مل بیٹھ کر نکالیں، افغان عوام خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان میں ہونے والی امن کانفرنس اشرف غنی کے کہنے پر ملتوی کی گئی۔ افغانستان میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ افغانستان میں عدم استحکام سے پاکستان کو شدید نقصان لاحق ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کہا دشمن کی آنکھوں میں سی پیک کھٹکتا ہے، پاکستان میں حالیہ دہشت گردی سازش کا حصہ ہے۔ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ 16 فروری سے منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ ان کے پاس دو ہی آپشن ہے، نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں، نمبر 2 کہ وہ اسائلم لیں وہاں۔ نواز شریف کے پاس دو آپشن ہیں، اپیل کریں یا سیاسی پناہ لیں۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کا جینا مرنا اپنے ملک میں ہو۔ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا ایک صاحب نے کہا شہباز شریف کو گرفتار کیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس ملک میں بھٹو کو پھانسی لگ گئی، چڑیا نہیں پھڑکی۔ شہباز شریف بھٹو سے بڑا لیڈر نہیں۔ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ 6 ماہ میں خطے کے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ انتشار پھیلانے والے منہ کے بل گریں گے۔ حالیہ دہشت گردی میں را، NDS اور اسرائیل ملوث ہے۔ محرم سے متعلق پیغام دیا، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ نواز شریف کو 2 آپشن دینے والوں کے اپنے تمام آپشن ختم ہو چکے۔ جو بائیڈن کو ایک فون کال کی اپیلیں کرنے والوں کے مشوروں کی نواز شریف کو ضرورت نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل، کہا راولپنڈی کا شیطان ایک مشورہ اپنے سابق باس مشرف کو بھی دے جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ سیاسی پناہ گزین اپنے تانگے کی فکر کرے، کوچوان بھاگنے والا ہے۔ چپڑاسی نے جب سے وزیر داخلہ کی ذمہ داری سنبھالی ہے، امن و امان کا حال ریلوے اور اس کے حادثات جیسا ہو گیا ہے۔ کیا فردوس عاشق اعوان کے لیے پنجاب کے دروازے بند ہو گئے؟ مخالفین کے کچے چٹھے کھولنے والی سابق معاون خصوصی کے لیے صوبائی اسمبلی کا دروازہ نہ کھلا۔ سیالکوٹ سے نو منتخب رکن احسن سلیم کی تقریب حلف برداری میں آئیں لیکن دروازے بند ملے۔ سیکیورٹی سٹاف نے اندر نہیں جانے دیا۔ فردوس عاشق اعوان نے دعویٰ کیا مہمانوں کی فہرست میں ان کا نام موجود تھا جو بعد میں کسی نے کاٹ دیا۔ کس نے کاٹا وہ دیکھ لوں گی۔ داخلے کی اجازت دینا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا استحقاق ہے، کسی کی سفارش نہیں، خود سے جانا جانتی ہوں۔ فردوس عاشق اعوان نے جمعرات کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ باجی کے برے دن شروع ہو گئے۔ مجھے علم ہوتا فردوس عاشق کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو میں خود ان کے ساتھ آتی۔ آج باجی کے ساتھ سیلفی بھی لینی تھی۔ اسما بخاری کا طنزیہ تبصرہ، کہا ظالموں نے اتنی تیاری پنک جوڑے کا بھی لحاظ نہ کیا۔ عہدہ چھن جانے کے بعد گھر اور باہر والوں نے آنکھیں بدل لیں۔ یقین رکھیے باجی نے بالکل محسوس نہیں کیا ہوگا۔ عزت کا کیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، عہدہ ہونا چاہیے۔ جیال رہنما حسن مرتضیٰ کا اظہار ہمدردی، بولے اب بھی وقت ہے، کسی اور جماعت میں چلی جائیں۔ یہ ریکارڈ ہے، یہ سب سے بڑا دنیا کا میاواکی جنگل اگایا گیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی حیثیت سے بہت آگے نکل کے پوری کنٹریبیوشن کی ہے یہ گلوبل وارمنگ روکنے کے لیے۔ لاہور میں دنیا کا سب سے بڑا جنگل لگانے کا منصوبہ، وزیر اعظم عمران خان نے سگیاں میں میاواکی اربن فارسٹ کا افتتاح کر دیا۔ 100 کینال پر 1.5 لاکھ سے زائد درخت اگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ملک چھوڑ کر جائیں گے۔ لاہور پاکستان کا سب سے آلودہ شہر ہے، میاواکی جنگل بہت اہم ثابت ہوگا۔ ملک میں 2013 تک صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں 5 سال کے دوران 1 ارب درخت لگائے، اب 10 ارب درخت اگائیں گے۔
वज़ीर आज़म से वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की अलग अलग मुलाकातें, अमन व अमान और अवामी फलाह के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची का भी मुख्तसर दौरा करेंगे। डेढ़ घंटे से ट्रैफिक में फंसा हूँ। 3.5 घंटे पहले घर से निकला था मैं और अभी तक है ना पहुंचा नहीं हूँ। सिंध में लॉकडाउन खत्म होते ही मार्केट्स में रश। एक हफ्ते बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग समझे कोरोना भी खत्म। एसओपीज को एक तरफ रखकर दीवानावार मार्केटों का रुख किया। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। वजीर आला सिंध ने दावा किया लॉकडाउन के बायस कोरोना में कमी आई। डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि 9 दिन बाद भी सूरत हाल जूं की तूं है। अस्पतालों में वैसे ही रश है, बिस्तर कम है। मस्बत शरह सिर्फ 3 से 4% कम हुई। NCOC ने 1 अक्टूबर से बगैर वैक्सीन ट्रेन के सफर पर पाबंदी लगा दी। असद उमर की जेर सदारत NCOC की बैठक। रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र उठाए गए इक़दामात पर भी गौर किया गया। बुरा हाल चला, 1 हफ्ता कारोबार बिल्कुल बन रहा है। 1 हफ्ता पूरा उधार ले लेके हम गुजारा करते रहे। 10 दिन के अंदर जो है 1 टाइम खाए हम। दिहाड़ीदार मजदूरों के 9 दिन कैसे गुजरे। लॉकडाउन के सबब कराची के बाजार 1 हफ्ता बंद रहे। रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। कहते हैं उधार लेकर घर चलाया। रहनुमा ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने बताया लॉकडाउन में 45 लाख मजदूर दिहाड़ीदार तबका फाका कशी पर मजबूर हुआ। ताजिरों के 50 अरब से ज़ायद डूब गए। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। चांद की रुयत का ऐलान कुछ देर बाद। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं तौहीन और तकफीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक तय कर लिए गए। मुक़द्दसात की तौहीन करने की इजाज़त नहीं, फ़ज़ाइल बयान करें। तनकीद और तौहीन करने नहीं देंगे। उम्मीद है उलमा और ज़ाकिरीन शिकायत का मौका नहीं देंगे। अपोजिशन का ताल्लुक है, उन्होंने तो भी ये टेक्नोलॉजी देखी भी नहीं। अगर हुकूमत और अपोजिशन में जिस दिन इत्तफाक राय हो गया उससे अगले दिन आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं और इलेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत पूरा करती है। हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हों तो इंतखाबात EVM पर हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं EVM के इस्तेमाल से इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। धांधली के इम्कानात कम होंगे। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को शिकस्त हुई तो धांधली का शोर मचाया। जीत जाते तो कहते इंतखाबात ठीक हुए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आज़ाद कश्मीर का सदर बनाने का फैसला। बैरिस्टर सुल्तान महमूद LA3 मीरपुर से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक ने बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखना मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। शीरी मज़ारी कहती हैं कोरोना से निपटने के लिए भारत की पॉलिसियाँ नाकाम हुई, फिर भी उसे एम्बर लिस्ट में डाल दिया गया। बरतानवी हुकूमत में भारत के चाहने वालों का गलबा है। पाकिस्तान ने डेटा शेयर नहीं किया, ये जवाब गैर संजीदा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को आइंदा 2 साल के लिए अबू धाबी डायलॉग की सरबराही मिल गई। अबू धाबी डायलॉग एशियाई मुल्कों में ताउन के लिए 2008 में कायम किया गया था। अबू धाबी डायलॉग के अरकान में भारत समेत 18 मुल्क शामिल हैं। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट में कहा अबू धाबी डायलॉग की सरबराही के लिए मरकजी किरदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अदा किया। 2008 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान को सरबराही सौंपी गई। जिम्मेदारी देने पर अबू धाबी डायलॉग और मेंबर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। ये वज़ीर आज़म की ओवरसीज़ मेहनत कशों के लिए की गई कोशिशों का एतराफ़ है। मेहनत कशों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। हमारी इधर बहन भाइयों की ज़मीन है और एबटाबाद में, जिसमें मेरे MNA है उस्मा जदूम, उसके भाई ने उन्होंने हमारी उस ज़मीन पर कब्ज़ा करके उस पर कमरा बना लिया।
एबटाबाद में पीटीआई की एमएनए पर शहरियों की ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम। 3 केनाल अराजी साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इफ्तिखार हुसैन की बेवा की है। एमएनए अज़मा रियाज और उसके भाई ने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया। साबिक गवर्नर की बेवा का इल्ज़ाम। ज़िला इंतज़ामिया पुलिस को दरख्वास्तें देने के बावजूद कब्जा नहीं छुड़ाया जा सका। वज़ीर आज़म पर पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई। पाक बहरिया की जंगी मश्क शमशीर बहर का कराची में आगाज। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा गवादर पोर्ट से तिजारत के साथ पाक बहरिया की जिम्मेदारियों में भी इजाफा होगा। बहरी तिजारत पर मुनहसर मुआशी तरक्की में पाक बहरिया का किरदार अहम है। मश्क का मकसद नए तसव्वुरात की अमली जांच और नफाज है। नूर मुकद्दम कत्ल केस। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त तक तौसी कर दी। ज़ाकिर जाफर और इस्मत आदम को अडियाला जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सांप निकल आया। 1 मीटर लंबे सांप को देखकर मुसाफिरों और अमले की दौड़ें लग गईं। एएसएफ एहलकार ने सांप को मार दिया। सांप एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज के सामने से निकला था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का उर्स जारी। कोरोना वायरस के बायस तकरीबात महदूद। मखसूस सायरीन की शिरकत। अकीदत के नजराने पेश किए। जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां तेज। जगह जगह झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। शहरियों की खरीदारी जारी। पाकिस्तान से मुतालिक अपने जज्बात और एहसासात की वीडियो बनाकर ARY न्यूज़ को भेजें। ARY न्यूज़ आपका पैगाम कौम तक पहुंचाएगा। कौमी टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड जमैका पहुंच गया। कोरोना टेस्ट मंफी आने पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाज़त मिलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट 12 अगस्त से शुरू होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में मुजफ्फराबाद और रावलाकोट हॉक्स में मुकाबला जारी। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के वसीम जूनियर की शानदार हैट्रिक। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2041 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 204 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया।